Yes, students. So very good morning to you all. And मैं अभी किसी एक स्टूडेंट से पूछ लेती हूँ, is my voice clear? प्राची. Prachi, just unmute yourself for a while. Hello. Good morning, Prachi. How are you? Fine, ma'am. Fine. Chalo, my voice is clear? Yes, ma'am. Okay. And on the screen also, are you able to see the poem, The Road Not Taken? Yes, ma'am. Okay, chalo. Now let us start with the chapter. Okay, Prachi, thank you so much. Okay. Yes, students. So now lower down your hand. Okay. So now, yesterday we learned this poem, understood this poem, the explanation and the text was done. The poem was The Road Not Taken. Today I am just going to give one reading to the text again of this poem. This is just उन बच्चों के लिए, maybe some of you who are present in today's class would have been absent in yesterday's class. वो शायद नहीं present होंगे कल. So एक छोटा सा, it will just take 5 to 10 minutes. We will just continue with the text. I'll just go through the text one. उसको in short मैं आपको थोड़ा सा उसका एक revision दूंगी, and then we will move to the question and answer. That is the query round. And in short छोटी छोटी चीजों को हम साथ साथ में और discuss करेंगे. That is, today we will complete this poem, and with this poem the part of chapter 1 is complete, and on Friday we are going to start with the next chapter. So students, now see, go along with me with the text. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in these. No steps had trodden blank. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference by Robert Frost. So, ये था text. Very simple in a very colloquial language. Colloquial is very easy to understand, day-to-day routine language. कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है इस पूरी पोएम के अंदर जो प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट हो, मतलब हमें बोलने में मुश्किल आ रही हो या उसको समझने में आ रही हो. जस्ट द थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज कि जब पोइट्री होती है ना, उसमें वर्ड कुछ होता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होता है और उसको पोएम में किसी और फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है. So what we have to do is we just have to link them. हमें सिर्फ इनको लिंक करके एक मीनिंगफुल चीज क्रिएट करनी होती है. हमें समझना होता है कि ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है यहाँ पे. So students, ये poem जो है, it's a very well known poem. It is about the day to day decision making or the choices we choose, and those choices are gonna make difference in our life. That difference can be good and can be bad, और वही हमारे decisions होंगे, उसी का जो डिफरेंस हमारी लाइफ में आएगा, उसी के बारे में हम बहुत समय बाद बैठ के बात करेंगे. Either we will say, give the credit कि यही मेरा ही डिसीजन था जो इतना अच्छा हुआ, एंड समवेयर अगर इफ वी आर अ लूजर बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, तो हम कहीं ना कहीं बैठे उसी को रिग्रेट करते होंगे, मेरा ही डिसीजन था कि सब कुछ खराब हो गया. राइट. सो दो रोड पोएट जहाँ पे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट येलो वुड्स के अंदर, एक पुराने जंगल के अंदर ऐसे पॉइंट्स पे आ गए हैं. इन फ्रंट ऑफ हिम देयर आर टू रोड्स बीइंग डाइवर्ज. एक ही पॉइंट से दो रोड्स जा रहे हैं. And sorry, being one person, he is not able to travel both. Sometimes what happens, mom gives us some work to do, and at that moment, our father asks us for some work, or brother, sister, or grandparents, anybody else also asks. So what we say,
मैं एक ही इंसान हूं ना, 2 ही हाथ है मेरे, 4 हाथ तो है नहीं, तो मैं कैसे काम करूं? So similar thing happens here that poet has 2 roads in front of him to travel. But being one traveler, ऐसा तो नहीं हो सकता वो one leg से एक रोड पे ट्रैवल करे एंड सेकंड से दूसरे। तो क्या हुआ? He says that being one traveler, मैं एक पे ही ट्रैवल कर सकता हूँ, I could not travel both. So for long he stood there thinking and thinking that what he should do, which road he should take. He wanted to decide. So अब क्या हो रहा है? When he was trying to decide about his choice, that which road he wants to go on. So what he did, he observed the roads. उसने क्या किया? दोनों roads को, just a second. So what he did, he looked at the road as far as he could. पहले उसने एक रोड को देखा and then he looked at the second road. कहाँ पे? Till the farthest end, जहाँ तक वो उसको देख सकते थे. And जब उसने पहला देखा और दूसरा देखा, the second one was having a better claim. So he decided, because उसको ऐसा लगा that it was a grassy road and it wanted, जैसे रोड डिमांड कर रही थी दैट एटलीस्ट समवन वॉक ऑन मी आल्सो, मुझ पे से कोई गुजरा ही नहीं है, ऐसा क्यों है? सो फॉर जो लोग वहां से निकल रहे थे उनके लिए दोनों रोड सेम थी, ठीक है, बोथ वर सेम, बट वी डोंट नो द रीजन कि व्हाई लोग फर्स्ट पे ही ज्यादा जाते थे, सेकंड पे नहीं जाते थे. तो उस दिन मॉर्निंग में पोएट के सामने भी दोनों इक्वली थी, दोनों लीव्स, जो पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं येलो लीव्स, उससे दोनों रोड जो थी वो बिल्कुल कवर्ड थी. कोई भी स्टेप उसके ऊपर मूव नहीं किए हुए थे, बिकॉज कोई भी ब्लैक मार्क्स रोड पे या लीव्स पे उनको नहीं दिखा रहे. तो he decided, being an adventurous person, उसे कुछ ऐसा करना था जो बाकियों ने ना किया हो. He wanted to do something different. And ये different करने के चक्कर में what he did, he took the second road. He decided to walk on the second road because it was less traveled by people. And he thought that what is on this road, I should go and have a look and fulfill his adventure. तो एक जो adventure का instinct था ना, उसने उसको क्या डिसाइड करवाया, दैट ही विल टेक अप द सेकेंड रोड एंड लीव द फर्स्ट रोड फॉर द सेकेंड टाइम. एनी टाइम इन लाइफ इफ ही वुड गेट अ सेकेंड चांस, अगर उसे लाइफ में कभी भी सेकेंड चांस मिलता है टू कम बैक टू दिस फोक पॉइंट अगेन एंड चूज, देन ही विल चूज द फर्स्ट वन दैट टाइम. बट ही न्यू समवेयर, उसको दिमाग में कहीं ना कहीं पता था दैट हाउ ways lead on to the way and he is never gonna come back at this place again. But still he said, he was doubted, but he said that okay, I leave the first road for the second time and at present I chose the second one. So, and he says that after years and years, ages and ages, somewhere I would have been sitting and with full of emotion and deep breath, I would have been telling someone, किसी को मैं ये बता रहा हूँगा, that once I came to the point where two roads diverged in the wood and I took the one less traveled by. And my decision, that was my decision which has made all the difference in my life till today. So students, ये क्या था? ये आपका उस पोएम का एक बेसिक चीज थी. Now when we talk of the poem, देखो बहुत सी चीजें होती हैं पोएम में, कुछ पोएटिक एलिमेंट्स होते हैं पोएम के अंदर, तो हमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ पोएटिक एलिमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है. सो व्हेन आई विल गिव यू द नोट्स, उसके अंदर ये सारे पोएटिक एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे विद एग्जांपल्स फ्रॉम दिस पोएम इटसेल्फ. आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं आए तो यू कैन आस्क मी पर्सनली. यहाँ पे देखो, हर जो पोएम होती है ना, इट हैज अ राइम स्कीम. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द राइम स्कीम. हर उसके अंदर एक राइम स्कीम होती है. राइम स्कीम मीन्स हर लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है वो किसके साथ में क्या हो रहा है, वो किसके साथ में हम बोलेंगे मैच करता है, कौन से वर्ड्स के साथ में वो मैच करता है. तो उसके लिए हम देखते हैं, आई विल ड्रॉ अ लाइन, जहां तक पॉसिबल है आई विल ड्रॉ अ लाइन. तो देखो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखो, दैट इज वुड. दिख रहा है ना, वुड. तो वुड, अब क्या वुड और बोथ एक साथ साउंड कर रहा है सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड? नो,
वुड के साथ में क्या शुड साउंड कर रहा है? सेम, दैट इज शुड। एंड शुड के बाद में कुड, क्या कुड एक सा है? यस, कुड एक सा है। तो वुड, शुड एंड कुड, ये क्या है? तीनों एक साथ साउंड कर रहे हैं। तो हम उसको क्या वर्ड दे देंगे? तो जो वर्ड सेम साउंड करते हैं, आप फर्स्ट को क्या नेम देते हो? आप उसको नेम देते हो अ। तो आप उसको क्या करोगे? यहाँ पे आप उसको ए नेम दे दोगे, ठीक है? ए दे दिया आपने, तो सिमिलरली आप शुड को भी ए दोगे एंड शुड को भी ए दोगे। अब बोथ और ग्रोथ, अंडर ग्रोथ, तो बोथ एंड अंडर ग्रोथ, इन दोनों को देखो, बोथ, ग्रोथ, ये दोनों सेम है, तो आप इसको क्या साउंड दे दोगे? आप इसको बी दे दोगे। तो ए बी, ए एंड बी, तो ये इसकी फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी, ए एंड बी। ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको क्या करना होता है? हमेशा स्टूडेंट जो वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स होते हैं लाइन के, आप उसकी क्या बनाते हो? राइमिंग की। तो आपने वुड को ए दिया, बोथ को बी दिया। अब ए के साथ में शुड भी सिमिलर साउंड हो रहा है, तो आपने उसको भी ए दिया, कुड को भी ए दिया, एंड ग्रोथ जो है वो बोथ, जो बी था उसको आपने बी दिया। तो सिमिलरली आप बाकी स्टैंडर्ड की भी करोगे। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो आता है वो कौन सा है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इस पोएम के अंदर यहाँ पे आ रहा है वांटेड वेयर, दिखाई दे रहा है आपको? मैं यहाँ पे जो मार्क कर रही हूँ वांटेड वेयर। तो अब आप वांटेड का यहाँ पे W देखो और वेयर का यहाँ पे, तो ये दो सेम कॉन्सोनेंट साउंड आपकी क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गई? आपकी एलिट्रेशन साउंड होगी। W एंड W साथ साथ में आ गया। एंड उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट पार्ट जो है, इसी का ही आपको एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, जो है आपका इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो सपोज यहाँ पे आ रहा है, ये देखो नेक्स्ट एलिट्रेशन का एग्जांपल, फर्स्ट फॉर, यहाँ पे आपको एफ दिखाई दिया है, यहाँ पे आपको एफ दिखाई दिया है, तो एफ एफ दोनों कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया है हमारा? एफ और एफ जो दोनों है हमारा एलिट्रेशन का पार्ट है। देन रिपीटेशन। रिपीटेशन तो मीन सेम वर्ड का बार बार रिपीट। यहाँ पे सिर्फ साउंड रिपीट हो रही थी एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे साउंड नहीं, यहाँ पे पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। लास्ट लाइन आप देखना, दिया हुआ था हमें एजेस एंड एजेस है, आपको दिख रहा है एजेस एंड एजेस। तो एजेस एंड एजेस, टू वर्ड्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एजेस एजेस, तो ये क्या है? दिस इज रिपीटेशन। And next we will say that is anaphora. Anaphora क्या होता है? जब भी कोई लाइन बिगिन होती है विद द सेम वर्ड, एक ही वर्ड से जब लाइन स्टार्ट होती है उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लाइन देखो, जहाँ पे हम कर्सर लेकर के जा रहे हैं बार बार, आपको सेकेंड लाइन में एंड दिख रहा है, उसके बाद एंड दिख रहा है, वापस एंड दिख रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में एंड है, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में एंड है, तो ये क्या चीज हो गई? दिस इज एनाफोरा। नाउ कम्स मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? चीजें जो होती है ना, उसका जब टू मीनिंग्स आते हैं, दैट इज समवेयर कि आप उसको बोलोगे वो लिविंग नॉन लिविंग को हम उसमें क्लैरिफाई करते हैं। जैसे डाइवर्स रोड, रोड डाइवर्स, फॉर्क और डेलिमा, तो इसको आप किससे रेफर करोगे? फॉर्क। फॉर्क आपको मैंने बताया था नूडल्स खाने वाला फॉर्क, तो सेम पॉइंट से टू वेज निकलते हैं, तो उसको फॉर्क। एंड सेकेंडली हम इसको बोलेंगे डेलिमा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, दो चीजों में जब कंफ्यूजन। यहाँ पे जो रोड है, एक्चुअल में रोड का चॉइस से कोई लेना देना नहीं है, रोड का रियल लाइफ मीनिंग क्या है? सड़क एंड चॉइस, बट यहाँ पे सड़क को किससे सिंबलाइज किया गया है? चॉइसेस से, तो ये क्या है? मेटाफर। येलो वुड्स, येलो वुड्स मीन्स जंगल, येलो कहने का मतलब जो ऑटम सीजन होता है, तो यहाँ पे येलो वुड्स को ऑटम सीजन से सिंबलाइज किया है। अंडर ग्रोथ, यहाँ पे जब बोला गया है अंडर ग्रोथ वर्ड, तो अंडर ग्रोथ हमने बोला रोड जहाँ पे एकदम अंडर ग्रोथ में चली जाती है,
मीन्स टू दैट पॉइंट जहां तक आपको रोड विजिबल है आपकी नेकेड आईज से। लेकिन यहाँ पे इसको सिंबलाइज किया गया है अननोन चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कि आपको पता नहीं है उससे आगे क्या है, ये आपकी लाइफ के अननोन चैलेंजेस से इसको यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ये जो वर्ड आया था, दिस इज यूज फॉर द मीनिंग लेस ट्रैवल। तो ग्रासी एंड वांटेड वेयर कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये वर्ड क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि ये जो रोड थी ये बहुत ही लेस ट्रैवल्ड थी। तो ये जो चीजें हैं, ये वर्ड्स थे, ये क्या थे? These were metaphors. And then comes the tone of the poem. जब हम पोएम पढ़ते हैं, हर पोएम की अपनी एक टोन होती है। ये जो पोएम है ना, इसकी टोन क्या है? बहुत ही रिफ्लेक्टिव टोन है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स बैक, ये कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमें रिफ्लेक्ट बैक करके बताती है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्या थे? ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स थे, ऐसी बेसिक पोएटिक डिवाइसेस थे जो हमें पता होने चाहिए जब हम पोएम करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको पोएम की राइमिंग स्कीम पता होनी चाहिए, आपको उसके पोएटिक डिवाइसेस पता होने चाहिए, आपको उसकी टोनल क्वालिटी पता होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पोएट के बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए, उसके पोएटिक स्टाइल के बारे में, उसके लिरिक्स स्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। Then only a sensible poem is complete for you. ठीक है, सो ऐसा। तो अभी हम इसके क्विकली जो हमारे पास इसके जो क्वेश्चंस हैं हम उसको ले लेते हैं, सो दैट अगर हमारे क्वेश्चंस अभी कंप्लीट हो जाते हैं, सो आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। Where does the traveler find himself? What problem does he faces? ट्रैवलर ने खुद को कहाँ पे पाया, कहाँ था वो, एंड what problem does he face? Traveler find himself at a point जहाँ पे उसके सामने क्या था? Two roads were diverging in the forest, and he is not able to decide that on which road he should travel. Why? Because being one traveler, he could not travel both at the same time. So metaphorically, we can say he was in a situation of dilemma. So the problem he was facing was a situation of dilemma in one's life to choose the right path. So he was also in the dilemma that whatever he decides, whichever path he choose, should be right. तो वो थोड़ा सा confused था। तो जो problem वो face कर रहा था was the dilemma of the mind. And this dilemma was about the choice that he has to make, that which road he should travel at present. Secondly, discuss what these phrases means to you. Discuss करें कि ये phrases आपके लिए क्या है. The first phrase is a yellow wood. We all know that autumn season, it depicts what? It depicts the dried yellow leaves. जो हवा के साथ में it falls down, and अगर हमारे घर में भी गार्डन है या यार्ड है और वहाँ पे खूब सारे पेड़ हैं, तो जब ऑटम सीजन आता है, जब पतझड़ का मौसम आता है, तो सारी जो ट्रीज होती है ना, उसकी जितनी भी लीव्स होती है ना, वो सारी क्या होती है? येलो हो जाती है, रॉटन हो जाती है, एंड दे फेल डाउन। तो बिल्कुल वही यहाँ पे येलो वुड भी कहने का मतलब है फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। और ये यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है इस पोएम में? द हार्ड टाइम ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, द डिफिकल्ट टाइम, द टाइम ऑफ डिलेमा, कि भाई क्या करूं, जो मैं करूंगा उससे मेरा भला होगा या बुरा, मुझे नहीं मालूम। सेकेंड इज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, कि रोड जो है ना उसके सामने दो। द सेकेंड रोड व्हेन ही सॉ इट, so what he saw that the second road was full of grass, खूब घास उगी हुई थी वहां पे, and it symbolizes that nobody has walked on this road from a long time, and it was a smooth road which had not worn out, और इसीलिए ये बहुत ही स्मूथ रोड थी, ये worn out नहीं थी, मीन्स कहीं पे भी इसका कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। This road was very clean and clear. Secondly, the passing there. Third question, third phrase is the passing there. Passing there means ये वो पाथ के लिए यूज किया गया है by people passing through the forest. जो people वहां से पास हो रहे हैं ना, जिस पाथ से, उसके पास से, उसके लिए से यूज किया गया है। Leaves, no steps had trodden glass. It means no one had walked over these leaves. इसका क्या मतलब है? कि कोई भी उन leaves के ऊपर से अभी वॉक करके नहीं गया। How way leads on to the way. ये किस तरीके से, जो हम बोलेंगे कि जो वेज होते हैं, they lead on to the way. How ways lead on to the way, कहने का मतलब it means how one road
लीड्स टू अदर रोड। कैसे एक रोड जो होती है वो लीड करती है ऑन टू द अदर। तो ये कुछ फ्रेजेस थे एंड व्हाट डज इट मीन टू यू वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, that is there any difference between the two roads as the poet describes them? पोएट जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, क्या इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस है? क्या है? In stanza 2 and 3, in the last two lines of the poem, पोएट जहाँ पे भी बताते हैं is there any difference between the two roads? तो जब हम स्टैंजा 2 की बात करते हैं तो पोएट क्या एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंस कि यस है। क्या डिफरेंस है कि एक फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड है, एक लेस ट्रेवल्ड है, और जो लेस ट्रेवल्ड है वो फुल ऑफ ग्रास है। बट इन द मॉर्निंग वो दोनों क्या है, इक्वली ले हैं, बट स्टिल कुछ पे से लोग ज्यादा निकले हैं, कुछ पे से कम। No steps had trodden black the second road and the first one is frequently traveled. In the last two lines of the stanza, जो है पोएट जो डिफरेंस बता रहा है वो ऑप्ट कर रहा है फॉर द रोड दैट इज लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स? क्या मतलब है? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट? क्या पोएट जब लुक बैक करता है वॉट एवर ही डिसाइडेड, तो क्या उससे उसको डिसीजन को वो एक्सेप्ट करता है या उस डिसीजन को वो बोलता है कि नहीं ये तो मेरा डिसीजन गड़बड़ हो गया? तो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर क्या है? जो लास्ट टू लाइन्स है पोएम की वो कंटेन करता है एक तरह से हमारी पोएम का थीम। पोएट ने ऑप्ट किया था कौन सी रोड के लिए? द रोड दैट वाज लेस ट्रैवल्ड एंड दैट वाज अ रियली चैलेंजिंग पार्ट। चैलेंजिंग तो वो था ही, ऑटोमेटिकली चैलेंजिंग था। क्यों था चैलेंजिंग? बिकॉज जिसपे से कोई गया नहीं है और आप उसी पे से जाने वाले हो, क्या मालूम आगे कितने चैलेंजेस है जिस वजह से कुछ ने उसको चूज नहीं किया। बट द डिसीजन ही टुक हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ हिज लाइफ। उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। एंड आवर चॉइसेस दे कैन डू टू थिंग्स, दे कैन आइदर मेक अस और ब्रेक अस। या तो हमारी चॉइसेस हमें बना देती है या हमारी चॉइसेस सब कुछ बिगाड़ देती है। But the poet accepts his choice. He says that it all depends on our thoughts and actions when faced with the dilemma of choices. जब हमारे सामने चॉइस होती है तो हमारे थॉट और एक्शन ही है जो हमें एक प्रॉपर एक राइट डिसीजन को चूज करने में हेल्प करती है। And whatever choices we make, ना, that choices will either make us or either they will break us. Okay? तो यहाँ पे ये है। Now, have you ever had to make a difficult choice? This is now question number second part starting. Second का first है. Have you ever had to make a difficult choice? Or do you think you will have difficult choices to make? How will you make the choice? For what reason? अब क्या आपको अभी तक लाइफ में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके सामने बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस हो और उसमें से आपको चूज करना है, या आपको ऐसा लगता है आने वाले समय में ऐसी चॉइस आएगी कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा? हाउ विल यू मेक द चॉइस? आप ये चॉइस कैसे करोगे? फॉर व्हाट रीजन? क्या रीजन होंगे उसके लिए? तो क्या है, हम सबके पास ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस है लाइफ में जहाँ पे हमने बहुत सी चीजें चूज की हैं। कहना का मतलब बहुत से ऑप्शंस में से हमने फाइनली एक को चूज किया है, डिसाइड किया है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज दैट हम क्या करेंगे, दोनों साइड देखेंगे। लाइक हमारे सामने अगर दो चीजें हैं, हम उसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से उसको हम इवेल्युएट करेंगे एंड इवेल्युएट ऑन बोथ फेसेस। We will evaluate its good part and its bad, that is the negative points and the positive sides of both, and work them accordingly. और फिर देखेंगे, only then we will decide, and the decision what we will take after so much evaluation, so we can say that is gonna be a successful decision for us. And you can even share your experience with me अगर लाइफ में ऐसी कभी कोई चेंज आई है। एनीबडी, किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि उसको लाइफ में कुछ चूज करना पड़ा हो दो में, एंड उस डिसीजन से, उस चॉइस से उसकी लाइफ में बहुत चेंज आया हो? एनीवन जिसको डिस्कस करना हो ऐसा कुछ? यस, एनीबडी वांट्स टू डिस्कस? हैंड रेज कर दो अगर किसी को पूछना है तो।
इट विल बी गुड अगर हम ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपस में डिस्कस करते हैं तो। एनीवन, हुआ तो होगा किसी के साथ में। ओके, यस, कौन करेगा? पवित, पवित, डू यू रियली वांट टू शेयर समथिंग? यस, एनीवन? नहीं, सबको अपने ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को पर्सनली रखना है, राइट? नहीं डिसाइड करना। ओके, चलो, डजंट मैटर। So now second question, after you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? Yes. Now I am able to see few hands, but raising and lowering is continuously going on. So we can't say that really anybody wants to answer it. So okay, doesn't matter. We will move on to our next question. That is, the next question is, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, आपने एक बार चॉइस कर लिया, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट, आप क्या हमेशा सोचते रहते हो व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, आप क्या ऐसा सोचते हो अगर मैं ऐसा कर लेता तो क्या होता, क्या नहीं होता, और या जो रियलिटी में अब गुड हो गया है चाहे बैड हो गया है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो भी आप डिसाइड करो उसके बाद सब अच्छा ही हो, नहीं, समटाइम्स बैड भी हो सकता है। तो क्या आप हमेशा अपने डिसीजन को लेके सोचते रहते हो, यू कीप थिंकिंग, और डू यू एक्सेप्ट वॉट एवर नाउ द रियलिटी इज, जो भी हुआ क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, तो क्या होता है अगर मैं आपको पर्सनली इस क्वेश्चन को खुद पे लूं, बिकॉज इसका कहीं ना कहीं हमें अपने तरफ से इसके आंसर देने हैं। So if I give you the answer of my way, if this is a question put up to me, so what I would answer that I am a person जो present में जीना है, ठीक है? We leave the past, we be in the present, and present से जो हम lesson लेते हैं उसको हम कहाँ apply करेंगे? In our future. If whatever we thought in the past and decided, and that has made all the difference in the present, and we are happy with it, so I am going to continue with my same thought process in the future. But on the other hand, if because of any reason the decision I took in the past, that decision made a difference in my life, but that what happened? It broke me. It didn't make me, it break me. वो decision अच्छा नहीं था. So I won't think about the past and get disturbed. What I will do is मैं उस decision से बहुत सा जो lesson present से लेने वाली हूँ, that lesson I am gonna apply for the future decision and the make future a success. तो ये चीजें स्टूडेंट होती हैं। सो बीइंग अ पर्सन who likes to live in the present, I will, if something wrong decision have been taken by me, so I will take a lesson from that past decision, but not keep on thinking about the past, and that lessons I am going to apply for the in the present and make my future a success. So I do best in the time available to me, because once the time is gone, it will never come back. So whatever the time is available to you, make the use in a best way, and कभी भी past की worries लेकर के नहीं बैठे रहना चाहिए, अपने future को खराब नहीं करना चाहिए, and be confident in yourself and the choices that you make in your life. जो भी आपने choices की है ना, just think, be confident on yourself, doesn't be in a dilemma कि पता नहीं ये सही है कि गलत। Just be confident कि जो है सही है, and if you face a worst consequence of that कि जो आपने decide किया उससे कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसका worry करने से नहीं कुछ होगा। So what you have to do is just take it as a lesson, उससे अपनी जिंदगी में एक शिक्षा ले लो कि इस decision की वजह से ऐसा हो गया है। So I promise to myself that in future मैं इस चीज को repeat नहीं होने दूँ। So this is the answer for this question. So look at the thought of Jawaharlal Nehru. कितना meaningful thought है. Time is not measured by the passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves. हम बोलते हैं ना, जिंदगी निकल गई कुछ किया नहीं, तो सिर्फ अगर जिंदगी निकालने को ही मेजर करना है, तो इट इज गुड। हम किसी को बोलते हैं 100 साल में भी इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, और किसी को हम बोलते हैं देखो अभी तक तो एज ही इसकी 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, एंड लुक एट द अचीवमेंट जो इसने हासिल कर लिए। सो समय को हम मेजर करते हैं, हम बोलते हैं ना समय वेस्ट हो गया, हम बोलते हैं नहीं कोई वेस्ट नहीं हुआ बल्कि यूटिलाइज हुआ। यू डोंट स्टडी बट उतने में आपने कुछ क्रिएटिव कर लिया, तो कोई तो बोलेगा आज तूने 2 घंटे इस काम में वेस्ट कर दिया, इतने में तो पढ़ लेता।
तो व्हाट यू विल से कि नहीं इस समय को इस चीज से मेजर मत करो कि 1 घंटा 2 घंटा, बट थिंक, देखो वो अचीवमेंट, ये मैंने कितना क्रिएटिव वर्क किया है, इट इज वर्थ मोर देन द टाइम, इन 2 घंटे से कहीं ज्यादा का मैंने अचीव कर दिया है. So time is not measured by just passing of years. आपको कभी भी उस बीते हुए 2 घंटों का कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर आपने उस समय में बहुत अच्छा किया है. तो बाय व्हाट वन डज, आप उस समय में क्या कर रहे हो, व्हाट वन फील्स, आप कैसा महसूस कर रहे हो, एंड व्हाट वन अचीव, आप उसमें क्या अचीव करते हो. अगर आपके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं, अगर आप कर रहे हो जो वो बहुत अच्छा है, एंड अगर आप जो फील कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, so the time used for that pass is worth. So time is not measured by just the passing of years, but by what it is measured. It is measured by what one does, what one feels, and what one achieves. Very well said by Jawaharlal Nehru, and we all should apply in our life. In our mind, हमें इन चीजों को कहीं ना कहीं फिक्स कर लेना चाहिए. Then only we are going to taste success in our life. So students, I hope everything in this poem along with the question answer discussion, everything is well clear. So tomorrow it will be off for you. So it is the time so that कि आपको अभी तक जितने notes available होंगे ना, tomorrow you sit, complete them and send it to me. During your work or during the revision of your chapter, if there are any queries, you can ask me personally on my number. And for this today, now we are going to stop this class. So it's bye-bye time for you all. Take care of yourself and just raise your hand and bid a bye so that it is clear that all of you are able to take the class properly. Yes. Few more hands. Yes. Okay. Chalo, take care. Stay home, stay healthy, and just keep studying. And please, please, please complete your work tomorrow. Whole day you are free to complete your work and just send it to